Hello viewers and welcome to the top headlines of 20th January. Convicted rapist Sanjay Roy sentenced to life imprisonment until death in the RG Kar rape and murder case. The news came just a few minutes back at around 2:45 p.m. when the Sialda court in Kolkata announced this verdict. On the demand for death sentence for the convict, the court refused by claiming that this case was not in the rarest of the rare case category and thereby a death sentence was not appropriate. Remember the case dates back to 9th of August 2024 when the dead body of the 31-year-old doctor who was raped by the convict Sanjay Roy was found at the seminar hall of the RG Kar Medical College and Hospital in Kolkata. The sensational details of this case led to widespread protests across the country, especially by doctors from the state of West Bengal. Roy was convicted on charges of sexually assaulting and strangling her under section 64, 66 and 103(1) of the Bharatiya Nyaya Sanhita. The Mumbai police have arrested a person who they claim is an illegal Bangladeshi national in connection with the attack on Bollywood actor Saif Ali Khan. The police have identified the alleged attacker as Mohammad Shariful Das, who was earlier a Bangladeshi citizen, who later changed his name to Vijay Das while entering into India. The accused was arrested from Thane on Sunday, with the police implying that the motive for this attack was to carry out a robbery at Saif Ali Khan's residence. Remember, the actor was stabbed on the morning of 16th of January at his residence in what was a scuffle with an unidentified man. Donald Trump to be sworn in as the President of the United States for a second time today. The swearing-in ceremony is set to take place at the Capitol Hill in Washington, D.C. at noon in the US, which is 10:30 p.m. on Indian Standard Time. Trump is set to be sworn in as the 47th US President. Olympic medalist Neeraj Chopra gets married to tennis player Himani Moore. While the marriage took place on 16th of January in Himachal Pradesh, the two-time Olympic medalist had said that he didn't feel it was necessary to make a public declaration before the official marriage. नमस्कार दोस्तों, और आज यानी कि 21 जनवरी के हेडलाइंस में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ मेले में लगी आग में 40 हट और 6 टेंट्स डैमेज हुए। यह घटना रविवार को यूपी के प्रयागराज में हुई थी और अभी तक सूत्रों के मुताबिक इसमें किसी की जान नहीं गई है। इस घटना के कुछ समय बाद ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में आग लगी जगह पर पहुंचे और उन्होंने अब तक इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी संपर्क किया है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नियम क्लियर करवाए। यहाँ पर यूसीसी का मतलब है कि उत्तराखंड में सभी धर्म के लोगों के लिए एक ही सिविल लॉ अप्लाई होगा। कैबिनेट के द्वारा क्लियर किए गए नियम और प्रावधानों में से एक अहम प्रावधान है एक स्टेट वाइड मॉक ड्रिल, जो इन्हीं सारे नियमों को एक तरीके से टेस्ट करेगा और ये ड्रिल आज ही यानी कि 21 जनवरी को ही समाप्त किया जाएगा। इन प्रोविजंस का ऑफिशियल रोल आउट राज्य के लोकल बॉडी इलेक्शंस के बाद किया जाएगा, जो कि गुरुवार को होना है। डोनाल्ड ट्रंप का यूएस प्रेसिडेंट बनते ही यूक्रेन ने की बड़ी बात। उनके और रशिया के बीच चल रहे युद्ध का अंत करने में अमेरिका की एक सकारात्मक भूमिका निभाने की उम्मीद जताई। इसके अतिरिक्त प्रेसिडेंट ऑफिस हेड ने भारत को लेकर भी की बड़ी बात। कहा कि भारत भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज में से एक होने के कारण और एक ग्लोबल वर्ल्ड लीडर होने के कारण उनके और रशिया के बीच चल रहे जंग को रुकवाने में एक भूमिका निभा सकता है। याद रखिए, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को अभी 3 साल होने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, अब आज यानी कि 23 जनवरी के हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के जालगांव डिस्ट्रिक्ट में एक ट्रेन एक्सीडेंट में 12 पैसेंजर्स की मौत हुई। इसके अतिरिक्त उस लखनऊ मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में 15 पैसेंजर्स घायल हुए। ये दुर्घटना तब हुआ जब ट्रेन एक पचौरा नामक रेलवे स्टेशन को अप्रोच कर रहा था। तब कुछ पैसेंजर्स ने कथित रूप से एक ऊंची आवाज सुना और धुएं को भी देखा। इसी के बाद कुछ पैसेंजर्स को लगा कि उनके कोच में आग लगी है और इसीलिए उन्होंने ट्रेन में लगी चेन खींचकर बाहर छलांग लगाई। परंतु जब उन्होंने छलांग लगाई, वो अपने ही बाजू में मौजूद ट्रेन ट्रैक्स पर गिरे
जिस पर फिर तुरंत एक तेज रफ्तार से चल रही दूसरी ट्रेन चल गई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेप मर्डर केस के फैसले पर सीबीआई ने कलकत्ता हाई कोर्ट में फाइल की अपील। उस अपील में उन्होंने इस केस के कन्विक्टेड रेपिस्ट संजय रॉय को उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। याद रखिए, सोमवार को ही कोलकाता के एक ट्रायल कोर्ट ने संजय रॉय को एक 31 साल की डॉक्टर का बलात्कार और हत्या करने के जुर्म में दोषी ठहराया और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट अंटिल डेथ की सजा सुनाई। इंग्लैंड के विरुद्ध T20 सीरीज के पहले मैच में भारत की बड़ी जीत। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7 विकेटों से भारत ने इंग्लैंड को शिकस्त दी। पहले इनिंग्स में इंग्लैंड को केवल 132 यानी कि 132 रन्स पर ऑल आउट करने के बाद भारत ने 133 रन्स का जो टारगेट था उसको 12.5 ओवर में ही पूरा कर लिया। वरुण चक्रवर्ती को 3 for 23 यानी कि केवल 23 रन देकर 3 विकेट लेने के बढ़िया बॉलिंग फिगर्स के कारण मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया। भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 5 मैच की T20 सीरीज में भारत ने अब 1-0 की लीड ले ली है और अब इस सीरीज का दूसरा मैच 25 जनवरी यानी कि शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।